जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की सीएसएस की। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ही है। 2024 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर 1 में से। क्वेश्चन 3 मीनिंग के ये फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट में से होगा। एज आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स बिफोर, पेपर 1 जो है अकाउंटिंग का, उसके दो पार्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो क्वेश्चन 3 हम देख लेते हैं कि ये क्या था और इसको कैसे होना चाहिए था। क्वेश्चन 3 कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स held for sale and discontinued operations specifies amongst other things accounting for and presentation and disclosure of discontinued operations। अच्छा, इस दफ़ा इसने IFRS को जो सा है इस पेपर में 2024 के बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसने 2-3 सवाल वहाँ से उठाने की कोशिश की। नॉर्मली पहले नहीं करता था ना, 2025 में आके पहले उसने ये काम किया है, लेकिन 2024 के पेपर में उसने डिफरेंट एक थोड़ा सा रूटीन से हट के सवाल दिए। ऑल्दो दे वर नेवर आउट ऑफ सिलेबस का हिस्सा है, बट एक्सपेक्टेड नहीं थे। सो ये रिक्वायरमेंट क्या है जी? डिफाइन discontinued operation and explain why the disclosure of such information is important to users of financial statement। उसके बाद पार्ट बी है जी इसका, RCR corporations sole activity is operating hotels all over the world after a period of declining profitability। Radar's directors made the following decisions during the year ended 31 March 2013। It disposed of all its hotels in country A. It refurbished all of its hotels in country B in order to target the holiday and tourism market। The previous target market in country B had been aimed at business clients। Required क्या है जी? Treating the two decisions separately, explain whether they meet the criteria for being classified as discontinued operations in financial statement for the year 31st March 2013। उसके बाद पार्ट सी है जी के एट द बोर्ड मीटिंग on 1st July 2012, Triple P Corporation's directors made the decision to close down one of its factories on 31st March 2013। The factory and its related plants would be sold। A formal plan was formulated and the factory's 250 employees were given 3 months notice of redundancy on 1st January 2013। Customers and suppliers were also informed of the closure at this date। The directors of Triple P corporations have provided the following information: 50 of the employees would be retained and deployed to other subsidiary within the groups at a cost of 125 PKR। उसके बाद the remaining will accept redundancy and be paid at an average of 5,000 each। The factory plant has a carrying amount of 2.2 million but is only expected to sell for 500,000 incurring 50,000 selling cost। However, the factory itself is expected to sell for a profit of 1.2 million। The company rents a number of machines under operating leases which have an average of 3 years to run after 31st March 2013। Present value of these future lease payments at 31st March was PKR 1 million। However, the lessor has said that it will accept 850,000 which would be due to the payments on due for payments on 30th April 2013 for their cancellation as at 31st March 2013। Penalty payments due to non-completion of supply contracts is estimated to be 200,000। अब हमें कहता है required explain and quantify how the closure of factory should be treated in Triple P Corporation's financial statements or for the year ended 31st March 2013। Note: the closure of factory does not mean the criteria of discontinued operations। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें खुद बता दिया कि जी ये क्राइटेरिया ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मीट नहीं करता।
सबसे पहली चीज़ उसने हमें कहा जी डिफाइन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड एक्सप्लेन व्हाई डिस्क्लोजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पार्ट ए था। यूजर अंडर IFRS 5 a discontinued operation is a component of an entity that either has been disposed of or is classified as held for sale. इसके तीन characteristics हैं। Number 1 represents the separate major line of business or geographical area of operation. Number 2 is part of single or coordinated plan to dispose of such line of business or geographic area. Number 3 है is a subsidiary acquired exclusively with a view to of resale. उसके बाद जनाब हमारे पास इम्पोर्टेंस की बात जहाँ पे करें वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़र, सबसे पहले चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें। जो डाटा हमें प्रेजेंट किया जा रहा है वो हमें श्योरिटी चाहिए कि वो ट्रू एंड फेयर है एंड इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड या ऑन इनसाइड द कंपनी। फिर हमें कहता है जी परसिस्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एंड अकाउंटिंग। यस, ये हमें एक सर्टन क्राइटेरिया सेट क्राइटेरिया दे देता है, क्योंकि अकाउंटिंग ये कहती है, अगर बेसिक्स हम अकाउंटिंग के देखें कि जो प्रिंसिपल आप एक दफ़ा अडॉप्ट कर लें तो वो ज़रूरी है कि वो हर साल अडॉप्ट किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप एक साल एक क्राइटेरिया या एक क्लासिफाइंग मेथड यूज़ कर लें, नेक्स्ट ईयर दूसरा यूज़ कर लें जस्ट टू इंश्योर मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट्स। सो वो चीज़ नहीं हो सकती। सो एक सर्टन क्राइटेरिया जो हमें अडॉप्ट करना होता है। उसके बाद इसकी थर्ड इंपॉर्टेंस है जी कंप्लायंसेस ऑफ IFRS 5 प्रेजेंटेशन रूल्स। कुछ सर्टन रूल्स हैं IFRS 5 प्रेजेंटेशन की, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होती फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज या कोई भी लिस्टेड कंपनीज जब तक वो एक सर्टन क्राइटेरिया मीट नहीं कर लेती। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया कि IFRS 5 प्रेजेंटेशन रूल्स का कि जनाब आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो से हैं वो बताएं और उसको इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें। उसके बाद असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड रिस्क है फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। उससे वो असेसमेंट करते हैं कि जनाब इस वक्त जो कंपनी की पोजीशन है उसको देखते हुए और कंपेटिटर से कंपेयर करते हुए या प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हुए इसके फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं इसके साथ। सो ये पार्ट ए था। लेट्स सी पार्ट बी। कहता है ट्रीटिंग द टू decisions separately, explain whether they meet the criteria of being classified as discontinued operation in financial statements for the year ended 31st March 2013। ये जो है जो फर्स्ट डिसीजन हम देखें तो इट फिट्स द क्राइटेरिया ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एट ऑपरेशंस आर क्लोज्ड इन अ सर्टेन जोग्राफिक रीजन, यानी कि वो कंट्री ए से अपने क्लोज करके आ रहा है, वाइंड अप करके आ रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज़ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। उसने उस मुल्क में अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए हैं। जबकि दूसरे को अगर हम देखें जहाँ पे वो रिफर्बिश कर रहा है कंट्री बी में होटल्स, तो वो ख़त्म तो नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। उनको रेनोवेट कर रहा है या ये रीडायरेक्ट कर रहा है या उनको रीमार्केट या रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑपरेशंस तो जारी हैं एंड इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, चाहे वो नई टारगेट मार्केट को करे या नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आए, विच एवर ऑप्शन, लेकिन वो कंटिन्यू तो करेगा। So this does the decision B है that does not meet the criteria of discontinued operations। उसके बाद पार्ट सी जिसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल था, वो कहता है जी एक्सप्लेन एंड क्वांटिफाई हाउ द क्लोजर ऑफ फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड इन ट्रिपल पी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 3rd March 2013। इसमें जनाब वो कहता है जी क्लोजर डज नॉट मीन द IFRS criteria as it is not presented as discontinued operation. Instead, this is restructuring under IAS 37, जिसमें प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स आ जाते हैं। अच्छा, प्रोविजन पेमेंट्स मेड देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो रिडंडेंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ है, यानी कि 250 में से वो अपने 200 एम्प्लॉयज़ निकाल रहा है और 5000 ईच पे कर रहा है, तो टोटल वो कितने पे कर रहा है, 1 मिलियन बन जाएगा। 200 एम्प्लॉयज़ जो कि निकाले गए और 5000 ईच पे कर रहा है, सो टोटल कितना बन गया, 1 मिलियन बन गया, 1000। उसके बाद एम्पायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्लांट्स, इसकी बात कर लेते हैं, जिसकी उसने कहा कि जनाब ये सेल हो सकता है या इसकी जो एक्चुअल वर्थ है दैट इज़ 2.2 मिलियन या 2200,000, बट
उसमें से वो सेल्स की जब बात कर रहा है वो कहता है बिकेगा 500,000 का, और इसमें से भी हमारी जो सेलिंग कॉस्ट है वो 50,000 की है, तो नेट्स जो है 450,000। सो इम्पेयरमेंट लॉस जो सा हम लॉस बर्दाश्त करेंगे दैट इज़ 17,50,000 का, 1.7 मिलियन का। यानी कि जो चीज़ 22 लाख की बिकनी चाहिए थी वो हमने 4.5 लाख में बेची। सो 17.5 लाख का हमने नुकसान बर्दाश्त किया। फिर लीज़ कैंसिलेशन होगी जो कि 10 लाख की बनती थी लीज़, लेकिन कंपनी जो उनसी है लीज़ लेसर जो है वो 8.5 लाख एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। 10 लाख के अगेंस्ट 1.5 लाख का उसने डिस्काउंट दे दी। तो ये 8.5 लाख का नुकसान यहाँ पे भी आ गया। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी है 2 लाख की कि आपने अपने सप्लायर्स की एग्रीमेंट मीट नहीं किए। सो ये हमारी टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें प्रोविजंस और एक्सपेंसेस दोनों आ जाएंगे। और ये हम जब टोटल कर लेंगे यहाँ पे रिडंडेंसी, लीज कैंसिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी मिल के बनाते हैं प्रोविजंस, जबकि इम्पेयरमेंट एक्सपेंस जो है हमारा एक्सपेंस होगा। तो ये हमारा टोटल आ जाता है 38 लाख का कंपनी ने नुकसान बर्दाश्त किया टू टू इट्स क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ये क्लोजर ऑफ फैक्ट्री कह सकते हैं, प्लांट, बिजनेस ऑपरेशंस तो खैर नहीं कह सकते। रिलेटिवली ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो ईजियर था, प्रोवाइडेड कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आपने जो IFRS और ये चीज़ें पढ़ी हुई हों। सो ये छोटा सवाल था, टाइम सेविंग क्वेश्चन था और इजी था, बट अगेन वही बात है कि अगर IFRS का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों तो ये आप कर सकते थे सवाल। एंड पे उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि हमने उसकी ज़्यादा कैलकुलेशंस एंड पे नहीं की, उसकी वजह ये हमारे पास बैलेंस शीट के ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ और जो उसमें कर सकते थे वो प्रॉफिट साइड भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं होंगे प्रॉफिट्स जब तक के वो प्लांट्स बंद नहीं होते और वो सारा का ऑपरेशंस क्लोज डाउन नहीं होते। सो वो 2013 का जो एंडेड वाला ईयर है उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इम्पैक्ट आएगा उसका जो वो, क्योंकि जब प्लांट सेल होगा फॉर 2.2 मिलियन हो या 1.2 मिलियन हो, जितने का भी हो, इसी तरह जो फैक्ट्री है वो सेल होगी तो वो पैसे रियलाइज होंगे। तो वो कब होंगे वी डू नॉट नो, इसलिए उनको हम 2013 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं ला सकते, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सो वो दे विल बी इंक्लूडेड जब वो रियलाइज़ होंगे और वो हमें नहीं पता कब होंगे, इसलिए हमने प्रॉफिट साइड को एग्जामिन नहीं किया। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई सजेशंस हैं, कमेंट्स आपके लिए हमेशा ओपन है, कोई क्वेश्चंस हैं ज़रूर पूछा करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।